जी प्रीति मैम स्टार्ट करें प्लीज। Okay, ठीक है सर, ठीक है. Good morning, everyone. It's a moment of extreme pleasure to welcome everyone who are present here to attend this workshop. Before we begin this refresher program, I would like to express my heartfelt gratitude to all of you who sincerely committed to this event to make it a success. Moving forward, I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce the guest speaker of the day. PhD Computer Science and Engineering, 16 plus years as an assistant professor, lecturer, presently Associate Professor, Computer Science and Engineering, MIT University, Noida, UP. He has contributed in the education field with many research publications, international journals, international conferences, research guidance, and many more achievements. So, without consuming any time, I would like to call upon Dr. Rakesh Garg to enlighten us with his words of wisdom. Sir, we would be delighted with your expertise and knowledge in every way possible. Sir, am I audible to you? Yes, madam. Sir, you can start now. Okay. A very good morning to all the participants and the organizers of this refresher course. First, thank you for this nice introduction by Preeti madam. So, not taking so much time for this, let us start the discussion on the topic that is indexing and the citation database. So, let me share the PPTs with you. So, Preeti madam, are the PPT visible? Yes sir, it is visible now. Okay. Okay. The discussion topic is the indexing and the citation database. Nowadays, what is happening that when we are writing a research paper, then the most important point that comes in our mind is where to publish. Either we have to publish in the conference or in the journal. This is the major question when we are going to publish any research paper. Let us take an example. Suppose I write a research paper and I want to publish that paper in any journal. Let us suppose the paper was on software testing. So the first point that comes in my mind is I will go for the journals having the scope regarding the software testing in their journal. Now I search in the Google who are the or what are the various software testing journals. I found, let us suppose, सर 20 हमारे journals. कुछ पार्टिसिपेंट्स, सॉरी टू इंटरप्ट यू, Yes. हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो वो थोड़ा अगर मिक्स हो जाए हिंदी और इंग्लिश का. Okay, Dindar ji, okay, no issues. थैंक यू सर, थैंक्स सर. Okay. The point is, जब आप एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, व्हाट इज हैपनिंग देयर, आपने गूगल खोला, सर्च किया कि दीज आर द जर्नल्स जो आपके पेपर के स्कोप को मैच करते हैं. बट नो प्रॉब्लम इज देयर, बहुत सारे जर्नल्स आपको गूगल में मिल गए, आपने 20 जर्नल्स निकाले कि ये जर्नल्स आपके पेपर को ले सकते हैं. अब इशू क्या आता है? व्हाट इज द इशू? इशू इज विच जर्नल यू विल फाइनलाइज. कौन से जर्नल में आप पेपर कम्युनिकेट करेंगे? टू फाइनलाइज दिस you have to check the indexing of the data, indexing of that particular journal. आपको उस जर्नल का इंडेक्सिंग देखना होगा. We commonly listen Scopus indexing, SCI journals, Google Scholar indexing journals.
तो बहुत सारे इंडेक्सिंग्स होती हैं. Based on these indexing, we can filter the journals so that we will be able to finalize the journal where we have to submit. आप इन इंडेक्सिंग्स को देखकर ये फाइनल कर सकते हैं कि आपको पेपर कौन से जर्नल में कम्युनिकेट करना है. That's why indexing of journal is a very important term nowadays. अगर आप एक अच्छी इंडेक्सिंग के जर्नल में पेपर कम्युनिकेट करते हैं and if you got published, then it is very valuable for you. बहुत वैल्यू रखता है अगर आप एक रेपुटेड इंडेक्स जर्नल में पेपर पब्लिश करते हैं. So in this discussion, these are the contents that we are going to discuss. One is the database. What is database? Then indexing and citation database. Under this, we will study what is indexing and what is citation. Then what is the need of indexing? Then what are the requirements for any journal to be get indexed? किसी भी जर्नल की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि वो किसी इंडेक्सिंग में अपीयर हो सके. And then we will discuss various available citation databases or indexing databases. Okay. First, what is database? A database is a collection of information. Means जहां पर आप अपना information store करते हैं, that is the database. If we are dealing with the research paper, if we are talking about the research paper, then name of the author, title of the paper, abstract of the paper, address of the authors, keywords, references, ये सारी इंफॉर्मेशन एक पेपर में होती है. When we are talking about one research paper, तो वहां पर आप क्या क्या लिखते हैं? टाइटल लिखते हैं पेपर का, ऑथर्स के नाम लिखते हैं वहां पर, ऑथर्स का एफिलिएशन लिखते हो कि ऑथर कौन से इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो पेपर का, कीवर्ड्स लिखते हो, एट द लास्ट रेफरेंसेस लिखते हैं. तो ये सारा एक इंफॉर्मेशन होता है रिगार्डिंग रिसर्च पेपर. नाउ वेयर वी आर गोइंग टू स्टोर दिस. आपने एक पेपर लिखा, मैंने एक पेपर लिखा, a number of papers are there available on the internet. Now the question is where these are stored. So database is that part where all these informations are stored. So this is the database. Now who are the users of this database? उस database को जहां पर ये information है, who will use? कौन यूज करेगा उसको? वन इज पब्लिशर. भाई जर्नल है, जर्नल को पब्लिश करता है कोई पब्लिशर है, वो यूज करेगा. स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स. तो ये सारे यूजर्स होते हैं डेटाबेस के, जहां पर आपकी रिसर्च पेपर से रिलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड. सारी इंफॉर्मेशन वहां पर आपको कलेक्टिवली मिलेगी. दैट इज द डेटाबेस. Next is indexing and citation database. What is the indexing? Indexing is the art of organized published literature from journals and other publications so that knowledge can be transferred. Meaning, what is the meaning? Indexing is the art by which knowledge in form of publications is provided. Let us suppose आपने एक रिसर्च पेपर लिखा, पब्लिश कर दिया कहीं. नाउ आई वांट टू राइट ए रिसर्च पेपर ऑन द सेम टॉपिक. क्या करूंगा मैं? आपके पेपर को पढ़ूंगा. अब अगर आपका पेपर ऑनलाइन मिलेगा मेरे को, तभी पढ़ पाऊंगा उसको. मीन्स आई एम गोइंग टू गेट द नॉलेज फ्रॉम यूर पेपर इफ इट इज अवेलेबल टू मी. दिस इज द इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग टू समथिंग. भाई आपका पेपर सर्च करना है, कैसे करूंगा? ऑथर का नाम लिखूं, आपका नाम लिख के चेक करूंगा गूगल में कि इस नाम से पेपर दे दो. मीन्स आई एम गोइंग टू इंडेक्स विद योर नेम.
आई वांट टू सर्च योर पेपर विद योर नेम, आपका नाम डालूंगा गूगल में, सर्च करूंगा, पेपर मिल जाएगा। दिस इज द इंडेक्सिंग। अब मान लीजिए आपके नाम से नहीं करना चाहता हूं मैं, मेरे को चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पेपर, क्या करूंगा, गूगल में लिखूंगा रिसर्च पेपर्स ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जहां जहां उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलेगा वो शो कर देगा रिजल्ट में। हाउ, कैसे हुआ? क्योंकि जो डेटाबेसेस होते हैं, इंडेक्सिंग डेटाबेसेस जो होते हैं, वो क्या करते हैं, सारे के सारे रिसर्च पेपर्स को इंडेक्स करते हैं। और इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? ऑथर के नाम से कर दी, कीवर्ड से कर दी, ऑथर की एफिलिएशन से कर लिया, पेपर के टाइटल से कर दी। These are the possible ways. So this is the indexing. Now what is index? Index is a list displaying the subject and the page that present the abstract of the information. मान लीजिए आपके पास एक शेल्फ है, उस शेल्फ में आपने थाउजेंड्स फाइल रख दी। अगर मैं उन फाइल्स को नंबर ना दूं कोई भी 1 2 3 F1 F2 F3 लाइक दैट, और कल को मैं बोलूं कि मेरे को एक डाटा चाहिए जो फाइल नंबर 500 में है, अब मैंने नंबरिंग तो करी नहीं, इंडेक्सिंग करी नहीं, how I will find the file having the number 500? Because I don't have indexing, मैंने कोई नंबर ही नहीं दिया फाइल्स को, then the problem will occur. अब 1 by 1 एक एक फाइल चेक करूंगा, मेरे को नहीं पता कौन सी 500 फाइल थी, वो कौन सी फाइल है जिसमें जो डाटा मेरे को रिक्वायर्ड है वो है। That's why indexing must be there to manage the data. Similarly, in case of research papers, indexing is highly required. What is the need? Why we are saying that indexing and citation are required nowadays? The first point, indexing will help your journal achieve its main purpose of being accessible to a wide audience. जितना ज्यादा इंडेक्स्ड होगा जर्नल, अगर आप उसमें पेपर पब्लिश करेंगे तो आपके पेपर को यूज करने वाले जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि आपका पेपर जितने अच्छे जर्नल में होगा, लोग, अब मैं कोई पेपर लिखना चाहता हूँ या आप कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, व्हाट इज हैपनिंग कि आप सर्च करेंगे कि अच्छे से अच्छे जर्नल का पेपर मिल जाए, ताकि जिसको पढ़ के आपको नॉलेज मिले ज्यादा, तो जिससे आप अपना रिसर्च पेपर बेटर प्रिपेयर कर सकें। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इंडेक्सिंग विल हेल्प यू टू मेक योर पेपर more accessible. More users will use your paper. Second, it will improve your journal reputation. If we are talking about the journal, as I said, कि कोई भी जर्नल, अगर मान लीजिए एक फील्ड में आपको 50 जर्नल गूगल में देखने को मिलते हैं, आपको ये पता करना है कि कौन सा जर्नल सबसे अच्छा है इस फील्ड में, तो आप उसको इंडेक्सिंग से आइडेंटिफाई करते हैं। इंडेक्सिंग से, जिसकी जितनी ज्यादा इंडेक्सिंग होती है अच्छे अच्छे डेटाबेसेस की, वो जर्नल उतना ही अच्छा माना जाता है। That's why we are saying indexing will improve the journal reputation. जर्नल्स का जो रेपुटेशन है वो इंडेक्सिंग पे डिपेंड करता है। अब अगर कोई जर्नल एससीआई इंडेक्स है तो हम कहेंगे कि ये तो सबसे अच्छा जर्नल है, कोई स्कूपस है तो कहेंगे ठीक है, अच्छा है। अगर दोनों में नहीं है तो हम कहेंगे ठीक ठाक सही है। दैट इज द नीड ऑफ द इंडेक्सिंग। नाउ व्हाट आर द जर्नल इंडेक्सिंग रिक्वायरमेंट्स? कोई भी जर्नल, लेट्स सपोज मेरा एक जर्नल है, आई वांट टू माय जर्नल इंडेक्स्ड इन एनी डेटाबेस। हमने कहा कि हमारा जर्नल इंडेक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडेक्स नहीं होगा तो कोई भी ऑथर मेरे जर्नल में पेपर पब्लिश नहीं करेगा। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू गेट ए जर्नल इंडेक्स्ड? पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ISSN नंबर। व्हेन यू आर सर्चिंग एनी जर्नल फॉर द पब्लिकेशन पर्पस, फर्स्ट चेक फॉर द ISSN नंबर ऑफ द जर्नल, कि उस जर्नल का ISSN नंबर है या नहीं है। इफ ISSN number is there, then there is no fraud in that journal somehow.
अगर ISSN नंबर किसी जर्नल का नहीं है, डोंट गेट योर पेपर पब्लिश इन दैट जर्नल बिकॉज इट्स ए फ्रॉड कर रहा है वो जर्नल आपके साथ। सेकंड, DOI number. What is there in the publication? When you publish a paper in any journal or in any conference, a DOI number is given to the paper. जैसे ही पेपर ऑनलाइन होता है उससे पहले उसको DOI नंबर देते हैं, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अगर आपने किसी जर्नल में पेपर पब्लिश किया और उसको DOI नंबर नहीं मिला, इट मींस समथिंग इज रॉन्ग एट दैट पॉइंट, कुछ गलत है वहां पर। थर्ड, एडिटोरियल बोर्ड पेज विद नेम्स एंड टाइटल्स। जब आप जर्नल सर्च करते हैं, जर्नल की साइट पे, अगर किसी जर्नल की साइट पे जाकर आप चेक करेंगे तो वहां पर एडिटोरियल बोर्ड की एक लिस्ट गिवन होती है। इट इज मैंडेटरी फॉर ईच ऑफ द जर्नल, हर जर्नल के लिए मैंडेटरी होती है अगर उसको इंडेक्सिंग चाहिए। पीयर रिव्यू पॉलिसी, नेक्स्ट इज पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू इज मीनिंग इज जब हम कोई पेपर सबमिट करते हैं किसी जर्नल में, उसके बाद जर्नल एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करता है जहां पर वो आपके पेपर को रिव्यू कराएगा अपने एडिटोरियल बोर्ड से। तो उसकी क्या पॉलिसी रहेगी? दैट इज पीयर रिव्यू पॉलिसी। सिंगल ब्लाइंड भी हो सकता है, डबल ब्लाइंड रिव्यू भी हो सकता है। सिंगल ब्लाइंड का मीनिंग है जो पर्सन आपका पेपर रिव्यू करेगा उसको ऑथर्स के नाम, आपके नाम और एप्लीकेशन पता होंगे, बट आपको नहीं पता होगा कि आपका पेपर किसने रिव्यू किया। दिस इज अ सिंगल ब्लाइंडेड रिव्यू। डबल ब्लाइंडेड क्या होता है? ना तो आपको ये पता होगा कि किसने पेपर रिव्यू किया, ना ही रिव्यूअर को ये पता होगा कि ये पेपर किसका है जो उसने रिव्यू किया। दैट इज डबल ब्लाइंडेड, दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन हिडन होती है। तो ये पॉलिसी डिफाइन होनी चाहिए जर्नल की साइट पर। एस्टेब्लिश पब्लिशिंग शेड्यूल, कितने टाइम में रिव्यू हो जाएगा, पब्लिकेशन तक कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट फॉर्म होते हैं। व्हाट इज द कॉपीराइट? आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया, नाउ द जर्नल विल आस्क टू फिल द कॉपीराइट फॉर्म। आपसे कॉपीराइट फॉर्म फिल कराएंगे। क्यों कराते हैं? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज ताकि कोई भी आपके पेपर का डाटा एग्जैक्ट कॉपी ना कर पाए। अगर उसको कुछ कॉपी करना है, कुछ लेना है आपके पेपर से, किसी को कुछ लेना है, तो उसको परमिशन रिक्वायर्ड होगी, या तो जर्नल से लेगा या फिर आपसे। इट गोज थ्रू द जर्नल। लास्ट, एटलीस्ट बेसिक आर्टिकल लेवल मेटा डाटा। कुछ आर्टिकल भी शोन होते हैं, अगर आप देखेंगे किसी जर्नल की साइट पे तो वॉल्यूम नंबर, इश्यू नंबर देख के उसमें पेपर्स की लिस्ट होती है। दैट इज द आर्टिकल लेवल मेटा डाटा। अगर किसी भी जर्नल को इंडेक्सिंग लेनी है तो ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। ISSN नंबर होना चाहिए, हर पेपर को DOI मिलना चाहिए, एडिटोरियल बोर्ड होने चाहिए कंप्लीट, रिव्यू पॉलिसी डिफाइन होनी चाहिए, टाइमिंग डिसाइड होनी चाहिए कि इतने टाइम में, इट इज एक्सपेक्टेड नॉट एग्जैक्ट। कॉपीराइट का पॉलिसी होनी चाहिए कि कॉपीराइट कैसे होगा, क्या फॉर्म होगा उसका, और आर्टिकल्स का मेटा डाटा होना। ओके, नाउ available databases. Available databases, as the topic of this discussion is indexing database and the citation database. So I divide the research database into two parts. One is indexing database and second is the citation database. First, we will discuss the indexing database. Under the indexing database, you can see in the figure 10 points. One is Google Scholar. Second is UL Rich Web. Third is DBLB. Fourth is Venfeng Data. Fifth is PUB Med. Sixth is EI. Seventh is DOAJ. Then Medline. Then Scopus. Then Web of Science. Citation database में हम डिस्कस करेंगे Google Scholar, Scopus और Web of Science. No, there is a confusion in this slide. अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे, there is a confusion. भाई Google Scholar, Scopus और Web of Science, these three are under the citation database. और अगर आप इंडेक्सिंग डेटाबेस में देखेंगे तो ये तीनों वहां पर भी अप्लाई करते हैं, गूगल स्कॉलर, स्कूपस और वेब ऑफ साइंस, नंबर 1, नंबर 9 एंड नंबर 10.
Now, what is the difference between indexing database and the citation database? Indexing database वो होते हैं जो आपके पेपर को इंडेक्स कर देंगे सिर्फ। साइटेशन का मतलब होता है कि आपका पेपर आज आपने पब्लिश किया, आज के बाद कितने लोगों ने आपके पेपर को रेफर किया, दैट इज द साइटेशन ऑफ योर पेपर। ओके, तो ये होता है साइटेशन। अब गूगल स्कॉलर, स्कूपर्स और वेब ऑफ साइंस, ये 3 डेटाबेसेस ऐसे हैं जो पेपर्स का साइटेशन भी काउंट करते हैं। मान लीजिए मैंने आज एक पेपर पब्लिश किया, स्कूपर्स, कोई जर्नल था, स्कूपर्स इंडेक्स था। अब क्या होगा, जब मेरे पेपर को कोई दूसरा ऑथर, कोई और ऑथर, मान लीजिए आपने यूज किया, आपने अपने पेपर में मेरा पेपर रेफर कर दिया और आपने अपना पेपर किसी स्कूपर्स इंडेक्स जर्नल में पब्लिश कर दिया, तो मेरे स्कूपर्स अकाउंट में वो साइटेशन दिखाना शुरू कर देगा उस पेपर के आगे 1। अब किसी और ने भी यूज कर दिया, 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। इस तरह से मेरे पेपर का साइटेशन बढ़ता चला जाएगा। ये हो गया स्कूपर्स का। सिमिलरली गूगल स्कॉलर भी आपको साइटेशन प्रोवाइड करता है और वेब ऑफ साइंस। बाकी जितने भी इंडेक्सिंग डेटाबेसेस हैं वो साइटेशन प्रोवाइड नहीं करते आपको। ओके, आई थिंक नाउ you participants are aware with the difference between indexing database and citation database। आपको पता चल गया होगा कि citation database क्या है और indexing database क्या है, right? Okay, now first is the Google Scholar indexing database। First we will discuss the indexing databases। Google Scholar, you can see, आप देख सकते हो कि एक आइकन लिखा बना हुआ है लेफ्ट साइड में, Google, उसके नीचे लिखा हुआ है Scholar। This is the very common इंडेक्सिंग डेटाबेस। अगर कोई जर्नल गूगल स्कॉलर में भी नहीं है ना, मतलब वो जर्नल तो बिल्कुल ही बेकार है। इट इज द वेरी कॉमन इंडेक्सिंग डेटाबेस। गूगल स्कॉलर है तो गूगल का प्रोवाइड किया हुआ है, गूगल कंपनी का है। Now I write some theory here about the Google Scholar। It is a freely accessible web search engine that indexes the full text or metadata of the literature। आपको कोई भी पेपर सर्च करना है, मान लीजिए मैंने गूगल स्कॉलर में कोई पेपर सर्च करना है, द साइट इज scholar.google.com। जब आप अपने ब्राउजर में, मान लीजिए आपने गूगल क्रोम डाला हुआ है, गूगल क्रोम में उसके जब वहां पर आप लिखेंगे scholar.google.com, खुल जाएगा आपके पास एक विंडो। वहां पर लिखो पेपर का टाइटल, सर्च करो। अगर वो पेपर जिस जर्नल में पब्लिश है, जिस कॉन्फ्रेंस में है, अगर वो गूगल स्कॉलर से इंडेक्स्ड है तो ही आपको वो पेपर वहां मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एंड इट इज द वेरी कॉमन एंड फ्री इंडेक्सिंग डेटाबेस। कोई भी जर्नल इजीली इसको ले सकता है। दिस इज द फर्स्ट गूगल स्कॉलर, राइट? सेकंड इज यूएल रिच वेब। दिस इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोक्वेस्ट। प्रोक्वेस्ट एक कंपनी है। ये जो डेटाबेस है, इंडेक्सिंग डेटाबेस, ये उसका है। थर्ड, डीबीएलपी। Again, it is the indexing database. It was started in 1993। जब ये डेटाबेस आया था तो ये 1993 में आया था और आज तक चलता है। यू कैन सी ऑन द जर्नल वेबसाइट, जर्नल की साइट पर आपको लिखा मिलेगा इंडेक्स बाय डीबीएलपी। नेक्स्ट इज वैनफेंग डाटा। इट इज द इंडेक्सिंग डेटाबेस स्पेशली फॉर द चाइनीज जर्नल्स। अगर आप चाइनीज जर्नल्स देखेंगे, चाइना के जो जर्नल्स हैं ज्यादातर वो इस डेटाबेस से इंडेक्स होते हैं, राइट? नेक्स्ट इज पबमेड। PubMed is a free search engine which provides access to the references and abstract। अगर कोई भी जर्नल PubMed से इंडेक्स है, अगर आप PubMed की साइट पर जाके कुछ पेपर सर्च करोगे, वो आपको पूरा पेपर नहीं दिखाएगा। वो क्या करेगा, पेपर का टाइटल दिखा देगा आपको, एब्स्ट्रैक्ट दिखा देगा और फिर रेफरेंसेस दिखाएगा। दिस इज द PubMed। नेक्स्ट इज EI,
EI अपेंडिक्स, इंजीनियरिंग इंडेक्स, EI की फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग इंडेक्स, एंड कंपेंडिक्स जो है दैट इज कंप्यूटराइज्ड इंजीनियरिंग इंडेक्स, COMP जो है इसमें दैट इज कंप्यूटराइज्ड, EN इंजीनियरिंग एंड DEX इज इंडेक्स. इट इज अ वेरी कॉमन इंडेक्सिंग डेटाबेस. जैसे गूगल स्कॉलर होता है ना, ऐसे ही ये भी बहुत कॉमन है और फ्री है, एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय द एल्सेवियर. एल्सेवियर एक पब्लिशिंग हाउस है, राइट. नेक्स्ट इज DOAG. फुल फॉर्म इज डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स. Again, as the Google Scholar and the EI, DOAJ is also a very common and freely available indexing database. ज्यादातर जर्नल DOAJ से इंडेक्स होते हैं. नेक्स्ट इज Medline. दिस इंडेक्सिंग Medline इज फॉर द मेडिकल जर्नल्स. अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर लिखा है Medline is biomedicine and health, broadly defined, life sciences, behavioral science, bioengineering, health policy, क्लिनिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ. ये जो मेडिकल लाइन के जर्नल्स होते हैं वो इस डेटाबेस से इंडेक्स होते हैं, Medline से, राइट. अब स्कूपस. स्कूपस इज ए वेरी कॉमन वर्ड जो हम रूटीन में सुनते हैं. अब आप में से बहुत से होंगे जो PhD कर रहे हैं, बहुत कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी होंगे जो ऑलरेडी PhD कर चुके हैं. स्कूपस, हम कहते हैं कि पेपर पब्लिश करना है, वेयर स्कूपस जर्नल में करना है. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आजकल कंडीशन है कि आपको PhD डिग्री तब मिलेगी जब आपके 2 पेपर स्कूपस इंडेक्स जर्नल में हो जाएंगे. स्कूपस इंडेक्स बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया आज के टाइम में. स्कूपस. स्कूपस इंडेक्सिंग इज प्रोवाइडेड बाय द एल्सेवियर. अगर कोई जर्नल स्कूपस में है तो हम कहते हैं कि जर्नल अच्छा है, हम अपना पेपर उसमें पब्लिश कर सकते हैं. और हर तरह के जर्नल्स को कवर करता है स्कूपस, चाहे वो मेडिकल लाइन का है, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन का है, चाहे वो अप्लाइड साइंसेज का है. देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन. आप देखेंगे तो मैंने लिखा है विच कवर रिसर्च टॉपिक अक्रॉस ऑल साइंटिफिक, टेक्निकल एंड मेडिकल डिसिप्लिन. कोई भी डिसिप्लिन है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, सब इसके अंदर कवर होते हैं. दिस इज द स्कूपस. नेक्स्ट इज वेब ऑफ साइंस. वेब ऑफ साइंस जो सबसे टॉप क्लास डेटाबेस है इंडेक्सिंग, दैट इज वेब ऑफ साइंस. सबसे अच्छा, सबसे मतलब बिल्कुल टॉप लेवल पे जो इंडेक्सिंग होती है वो होती है वेब ऑफ साइंस के अंदर. वेब ऑफ साइंस में हम कहते हैं कि SCI जर्नल में पेपर पब्लिश करना है. व्हाट इज दिस SCI? SCI इज साइंस साइटेशन इंडेक्स. अगर आज से 5 साल पहले की बात करूं तो एक इंडेक्सिंग होती थी SCI और दूसरी होती थी SCIE, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड. दो ही होती थी. अगर कोई पेपर निकाल लेता था SCI इंडेक्स जर्नल में तो कहते थे कि इससे बड़ा रिसर्चर नहीं हो सकता, SCI में निकाल दिया पेपर, साइंस साइटेशन इंडेक्स. अब बहुत सारे जर्नल्स SCI इंडेक्सिंग हो गए तो वेब ऑफ साइंस ने क्या किया, क्लैरिवेट एनालिटिक्स करके एक सोसाइटी क्रिएट की. उसने क्या किया, SCI की कैटेगरी बना दी, SCI एक्सपेंडेड, SCIE. फिर आप लोग आजकल जर्नल की साइट पे देखते होंगे कहीं कहीं लिखा होता है ESCI, एमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स. मींस वेब ऑफ साइंस ने क्या किया, जर्नल्स को कैटेगराइज कर दिया SCI इंडेक्सिंग के अंदर. ये एक तो कह दिया कि ये सबसे ऊपर है SCIE, फिर हमने कह दिया SSCI दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे मैंने कहा ESCI है. तो इससे से कैटेगराइजेशन कर दिया इस इंडेक्सिंग ने, वेब ऑफ साइंस, राइट. नाउ इट इज ऑल अबाउट द इंडेक्सिंग डेटाबेस. मैं आपको रिव्यू कर देता हूं कि क्या क्या होते हैं इंडेक्सिंग डेटाबेस, क्यों यूज किए हमने. देखिए, इंडेक्सिंग से हमें ये पता चलता है कि जिस जर्नल में हमें पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं वो कैसा है, ठीक है, हम उसमें करें, कहीं फ्रॉड तो नहीं कर देगा हमारे साथ. तो उन चीजों के लिए हम जर्नल की रेपुटेशन चेक करते हैं, और जर्नल की रेपुटेशन हमेशा इंडेक्सिंग से चेक करते हैं उसकी, कि कोई जर्नल कौन कौन सी इंडेक्सिंग डेटाबेसेस में इंडेक्स है. मैंने कहा गूगल स्कॉलर,
DBLP, DOAG, ये है मोस्ट कॉमन, फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली मिल जाते हैं। इनके लिए कोई फीस नहीं लगती, कुछ नहीं लगता, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट प्रोसीजर भी नहीं है इनका। मान लीजिए मेरा जर्नल है, मिनिमम रिक्वायरमेंट में फुलफिल करता हूँ, मैंने अप्लाई कर दिया गूगल स्कॉलर इंडेक्सिंग के लिए, मिल जाएगी। इसी तरह EI भी मिल जाती है, DBLP भी मिलेगी, DOAG भी मिल जाएगी। बट अगर मैं स्कूपर्स के लिए अप्लाई करता हूँ तो वहां एक स्टैंडर्ड रहेगा। स्कूपर्स के जो कंस्टेंट है, स्कूपर्स के जो कंडीशंस है, अगर मेरा जर्नल उनको सेटिस्फाई करेगा तो ही मेरे को स्कूपर्स इंडेक्सिंग मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और वेब ऑफ साइंस उससे भी ऊपर आ जाता है। अगर वेब ऑफ साइंस की इंडेक्सिंग चाहिए तो उनका और ज्यादा हार्ड प्रोसीजर है। अगर उनकी सारी कंडीशन को फुलफिल कर पाएंगे तो ही जर्नल को इंडेक्सिंग मिलेगी वेब ऑफ साइंस में, नहीं तो नहीं। तो we discussed the 10 indexing database: Google Scholar, UL Reach Web, DBLP, Venfang Data, PubMed, EI, DOAJ, Medline, Scopus, and Web of Science. Now, the main point is here that when you are looking to publish any paper in any journal or conference, I suggest please check the indexing of journal or the conference for which you are looking. अगर उसकी इंडेक्सिंग अच्छी है तो ही आप उसमें पेपर पब्लिश करिए, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ योर पब्लिकेशन। फाइन। Let me show you one example how you can check the indexing. Wait. Can you see my screen? Please tell Devendra ji. Hello. 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 जी सर बताएं। Sir, can you see my screen? जी सर Because मैं पार्टिसिपेंट्स को ये दिखाना चाह रहा था कि किसी भी जर्नल की इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हैं। सर स्लाइड्स तो विजिबल हैं आपकी? स्लाइड्स विजिबल हैं? जी जी जी। एक मिनट सर। जी सर बताएं। एक सेकंड। स्लाइड विजिबल है? जी जी जी। Now sir, now what you are seeing? सेम सर। Slides. साइटेशन डेटाबेस स्कूपस, ये स्लाइड चली हुई है। एक बार Slide आप चल रही है। शेयरिंग क्लोज कर दीजिए, दोबारा शेयर कर दीजिए। जी। Hope share. So I want to share my screen so that I will be able to show the way how we can search the indexing. कैसे कहाँ लिखा होता है जर्नल में? Share screen. तो सर एंटायर स्क्रीन कर लीजिए आप Okay. शेयरिंग करते वक्त। Now you can see the screen. यस सर। Okay. जूम की वेबसाइट खुली हुई है। जी 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 ठीक है। Now participants, I will tell you how you can see the indexing of any journal. Let us suppose, let us take the example. google.com खोला है मैंने, आप देख सकते हैं google.com। मान लीजिए मेरे को चेक करना है, let us suppose International Journal of Information and Decision Science। मान लीजिए ये जर्नल सर्च करना है। जब आप गूगल में किसी जर्नल का नाम लिखते हैं, क्या होता है कि वो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चीज आपने लिखी उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिंक्स दिखाएगा। मान लीजिए पहला जर्नल खोला मैंने, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन डिसीजन साइंस। सबसे ऊपर आएगा पब्लिशर, कि कौन पब्लिश करता है इस जर्नल को, इंटर साइंस का ये जर्नल, राइट। अब इसकी इंडेक्सिंग चेक करनी है।
आप स्क्रॉल करिए इसको, ये देखिए IJIDS is indexed in Scopus, एकेडमिक ऑनलाइन, ये सारे DPLP, तो ये सारे के सारे इंडेक्सिंग डेटाबेस हैं। अब ये जो जनरल मैंने खोला है अभी, इट इज इंडेक्स्ड इन दीज 5 डेटाबेसेस। स्कोपस में भी है, DBLP में भी है, एक्सपेंडेड एकेडमिक में है। इन दिस वे यू कैन चेक द इंडेक्सिंग ऑफ एनी जर्नल। अब जर्नल की साइट पे लिखा हुआ है कि स्कोपस इंडेक्स है, बट हमें क्या पता कि ये स्कोपस है या नहीं? भाई क्या पता इसने झूठ लिखा हो? हाउ वी विल चेक? कैसे वेरीफाई करेंगे? अब इसने स्कोपस लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, स्कूपस के डेटाबेस में चलते हैं, scopus.com, scopus.com में चलते हैं, वहां चेक करेंगे कि क्या है। अब स्कूपस की साइट खुल गई, स्कूपस डेटाबेस खुला हुआ है आपके सामने, आप देख सकते हैं स्कूपस प्रीव्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ स्कूपस प्रीव्यू। सोर्सेज में चलते हैं, क्लिक ऑन सोर्सेज। अब टाइटल देखो, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं, सब्जेक्ट एरिया, टाइटल, पब्लिशर, ISSN। मैंने बताया था आप लोगों को हर जर्नल का एक ISSN नंबर होता है, अगर नहीं है तो जर्नल फ्रॉड है। टाइटल होगा जर्नल का, पब्लिशर कौन पब्लिश कर रहा है, कौन सा पब्लिशिंग हाउस है, सब्जेक्ट एरिया लिखा होता है। मैं टाइटल से सर्च करके देखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन साइंसेस, ये दिखा रहा है यहाँ पर। फाइंड सोर्सेज, ये देखिए वन रिजल्ट, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन डिसीजन साइंसेस, मतलब उस जर्नल की साइट पे लिखा होता है कि स्कूपस इंडेक्स है, मतलब ये फ्रॉड नहीं है। अब देखिए मैंने उस पर क्लिक किया तो अब ये दिखा रहा है, ये देखो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन डिसीजन साइंसेस, ये जर्नल का नाम था जो हमने वहां गूगल में सर्च किया था। स्कोपस कवरेज फ्रॉम 2008 टू प्रेजेंट, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि ये जो जर्नल है स्कोपस में इंडेक्स हुआ था 2008 में, और आज तक स्कोपस इंडेक्स में है। देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, दैट इज अगर कोई जर्नल कहता है कि वो स्कोपस में है, दैट इज फॉर 2021 में मैंने किसी जर्नल की साइट पे चेक किया, तो लिखता है कि स्कोपस में इंडेक्स में, स्कोपस इंडेक्स जर्नल है, तो यहां पर अंदर जाके आपको पता चल जाएगा कि वो इस ईयर में है या नहीं है। अगर मान लीजिए ये वाला जो जर्नल अभी ओपन है, इंटरनेशनल ऑफ इंफॉर्मेशन डिसीजन साइंसेज, अगर ये 2020 से के बाद से बाहर हो जाता स्कोपस इंडेक्सिंग से, तो यहाँ लिखा होता फ्रॉम 2008 टू 2020। इन दिस वे यू कैन चेक। अब देखो पब्लिशर भी लिखा हुआ है, इंटर साइंस पब्लिशर्स का है, ISSN नंबर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट एरिया भी लिखा है, सोर्स टाइप जर्नल और कॉन्फ्रेंस, या जर्नल होगा या कॉन्फ्रेंस, राइट? तो in this way you can check whether the journal is scopus indexed or not. Fine. So till now we have studied or we have discussed what is the indexing database, what are the various indexing databases what are free, and how you can check whether the particular or any journal is indexed in the Scopus, कि कोई journal Scopus में index है या नहीं. If any of the participant have any query regarding the indexing database, please let me know, because after that we will start the citation databases. अगर आपको लगता है कि journal check करना है, tell me. I will share my screen and I will check that the journal that you have given is Scopus indexed or not. Any participant, anyone who want to check any journal, either that journal is indexed in Scopus or not. No?
Okay, let us move on the citation database. So next is the citation database. I told you what is the citation. Citation का मीनिंग है आपका पेपर जब पब्लिश हुआ उसके बाद कितने ऑथर्स ने कितने पेपर्स में आपका पेपर रेफर हुआ. That is the citation. So I write here, a citation database is a form of bibliographic index which provides a record of citation between publications, enabling a user to see which publication have cited with other publication. Means आप मेरा पेपर कितने और लोगों ने अपने पेपर में यूज किया, रेफर किया, जितने ऑथर जितने पेपर से मेरा पेपर रेफर हुआ मेरे उस पेपर का साइटेशन उतना ही हो जाएगा. दैट इज द साइटेशन डाटा. दैट इज द साइटेशन. और जो डाटाबेस इसको मेंटेन करते हैं उनको बोलते हैं साइटेशन डाटा. राइट, लेट मी शो यू व्हाट इज द साइटेशन. आई विल शो यू. In previous discussion, we talk about the scholar.google.com. Now you can see I write here scholar.google.com. Enter. I click on my profile. क्योंकि मेरी जीमेल से लॉगिन है तो मेरा प्रोफाइल खोल देगा. ये देखिए, my name is Dr. Rakesh Garg, MIT University Uttar Pradesh, my affiliation. Now, on the right side, you can see citation, cited by citation 433. ये क्या है? जितने पेपर मैंने लिखे उन सबका टोटल साइटेशन है कि 433 पेपर्स में मेरे पेपर्स को रेफर किया गया है. दिस इज द साइटेशन. अगर आप अलग अलग देखना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे मेरा फर्स्ट पेपर है, साइटेड बाय 130, साइटेड बाय 130 मतलब 130 पेपर्स में मेरे इस पेपर को रेफर किया हुआ है. इसी तरह 38, 37 साइटेड बाय. मींस हर पेपर का अपना एक साइटेशन वैल्यू होता है. जब कोई भी किसी के पेपर को यूज करता है, मान लीजिए मैंने आपका पेपर यूज किया, 1 आपका साइटेशन 1 बढ़ जाएगा. फिर किसी और ने आपका पेपर यूज किया, 1 और बढ़ जाएगा. जैसे जैसे आपके पेपर को लोग यूज करेंगे आपका साइटेशन बढ़ता चला जाता है. आज के टाइम में, आज जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो पेपर जितना ज्यादा साइटेड है, मतलब उतने ज्यादा लोग उसको रेफर कर रहे हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ साइटेशन है. अब गूगल स्कॉलर मैंने आपको कहा था साइटेशन देता है, साइटेशन डाटाबेस भी है. तो आप देख सकते हैं कि ये गूगल स्कॉलर की साइटेशन है सारी. ओके, नाउ आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस वर्ड साइटेशन. साइटेशन का मीनिंग क्या है, और जो डाटाबेस साइटेशन को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, उनको हम बोलते हैं साइटेशन डाटाबेस. फाइन. Now, under the citation database, we will discuss the 3 databases. One is Google Scholar, second is Scopus, and third is Web of Science. Let me discuss Google Scholar first because it's very easy one. Let me come to. Later we will discuss the Scopus and the Web of Science. First, Google Scholar. The first point is free database from Google. Google ने प्रोवाइड किया है और फ्री है. इसमें कोई पैसे नहीं लगते किसी जर्नल के.
जब कोई इसमें इंडेक्स करा लेता है। यू कैन सर्च अक्रॉस मैनी डिसिप्लिन एंड सोर्सेज। आर्टिकल्स, आप आर्टिकल सर्च कर सकते हो इसमें। मान लीजिए आप पीएचडी कर रहे हो, आपका टॉपिक है कुछ, उस टॉपिक के रेलिवेंट आप किसी से सर्च कर सकते हो, बुक सर्च कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन सर्च रिगार्डिंग योर रिसर्च। यू कैन फाइंड आउट व्हाट पब्लिकेशन हैव साइटेड अदर पब्लिकेशन। मतलब हम ये भी देख सकते हैं कि इस कौन से पेपर को कितने लोगों ने साइट किया। एडवांस एडवांस सर्च का मतलब है कि रिफाइन कर सकते हो अपने रिसर्च को। आई विल शो यू प्रैक्टिकली दीज थिंग्स। There are duplicate false citations, so need to double click the record. So these are some points about the Google Scholar. अब Google Scholar कैसे काम करता है, कैसे सर्च करते हो उसमें? आप देखो ऊपर लिखा हुआ है http://scholar.google.com। ठीक है, अभी हम करके देखेंगे। फाइंड आर्टिकल्स कैसे ढूंढ सकते हो? ये आर्टिकल ऑथर का नाम लिखा हुआ है, सर्च करो, इस तरह से सर्च होके आता है, राइट? अब ये जो एडवांस सर्च की बात हो रही थी, मैंने कहा एडवांस सर्च कर सकते हैं आप। लेफ्ट साइड में अब ये रेड कलर के बॉक्स के अंदर लिखा आ रहा है आर्टिकल्स, केस लो, माई लाइब्रेरी, एनी टाइम। टाइम का कंस्टेंट लगा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि 2010 के बाद के पेपर आए, या 2015 के बाद के पेपर देखने हैं मैंने, तो या फिर मैंने देखने हैं 2010 से 2020 के बीच के देखने हैं, या मैंने 2000 से 2015 के देखने हैं। तो सर्च को रिफाइन किया जा सकता है, राइट? ये देखिए साइटेड बाय, कि कितने लोगों ने साइट किया। वेब ऑफ साइंस के कितने वेब ऑफ साइंस में पेपर थे, इस पेपर को उन कितने पेपर्स ने रेफर किया जो वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल्स में पब्लिश्ड है। इस तरह का आपके पास एक पॉपअप विंडो आती है जब आप गूगल स्कॉलर यूज करते हैं। इस तरह से सर्च किया जाता है, इस तरह से रिजल्ट आते हैं आपके पास। टोटल रिजल्ट दिखा रहा है अभी अबाउट 1,43,000 रिजल्ट। फॉर्मेट दिखा रहा है, HTML है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पब्लिश हुआ है, ये इस साइट पर है, ये इस साइट पे है, इस तरह से दिखाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके कि कैसे करते हैं इसको। गूगल स्कॉलर में चलते हैं, वहां मैं आपको क्लियरली करके दिखाता हूँ ये कैसे होती हैं चीजें। चलिए स्कॉलर डॉट, आप साथ साथ करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने scholar.google.com खोल लिया, राइट? अब मेरे को पेपर चाहिए, मैं कहता हूँ कि मेरे को चाहिए ई लर्निंग वेबसाइट सिलेक्शन, कोई भी टॉपिक लिख दिया मैंने, राइट? सर्च किया। नाउ अब आप देखिए कितने रिजल्ट दिखाए, अबाउट 1,40,000 रिजल्ट। मतलब इस जहां जहां इसको ये कीवर्ड मिला, ई लर्निंग वेबसाइट सिलेक्शन, इसने सर्च किया और टोटल 1,40,000 इसने लिंक्स ढूंढ दिए। कितने सेकंड्स में? 0.18 सेकंड में, राइट? अब लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। चलो पहले जनरल इस पेपर को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पेपर को। अब ये फर्स्ट पेपर है, ये टाइटल है, दिस इज द टाइटल, ये टाइटल है आपका, ओके? ये टाइटल हो गया। अब दीज आर ऑथर्स, ये ऑथर है,